Jai Hind, my dear students, how are you? So, students, I hope that you all are doing great and perfect. So, students, we were reading chapter Michelangelo, a portrait, and in that chapter, I have completed the complete story for you. Right now, I gave you some homework regarding writing answers and all, but I found that no one has responded. So right now I'm just again reminding that here are the questions, this discuss and write. So you have to solve these answers, like write these answers in your copy. For your reference, I'll be helping you. I'll be giving you a bit of hint in all these questions. Okay, so let's go. But before reading this, I'm just gonna teach part B first. Okay, so students, here the point says complete the following table about the major events in the life of Michelangelo. So here is the year when the events that took place. So and you have to fill accordingly. So in year 1475, Michelangelo was born. In year 1481, he was sent to Settignano. Settignano was a family farm where he was brought up by a nurse. Remember? Okay. Point number 3, 1485. He began living with father. Means he returned from Settignano to live with his father. Okay? Because you would see a sentence in your book that at 10 he returned to his father. So if he was born on 1475, so after 10 years in 1485 he returned to his father. Clear? In 1496 he went to Rome. In 1508, what happened? In 1508, Pope Julius II demanded to paint on that church, okay, on that Saint Belisca. Now the next is in 1547 he became chief architect of St. Peter's Church. Okay, so here Pope Julius demanded for Saint Belisca to paint it, but in 1547 he became the chief architect of St. Peter's Church. St. Peter's Church. So I hope that you all are able to understand it. Now the next is match the words with their meanings. So in the left side you have got words and in the right side you have got the meanings. So I'm not here marking any lines and all. I've just written the alphabets, the first number of the alphabets. Okay, so in this question here the first word is dignity. So students, dignity means sense of importance and value. मीन्स कि जब आप किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस और उसकी वैल्यू को समझने लगते हो, देन यू बिकम डिग्निफाइड एंड आपके अंदर डिग्निटी आ जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज पैशन. सो पैशन इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल यू आर अ सिंगर, मतलब आपको सिंगिंग करना पसंद है. सो सिंगिंग इज़ योर पैशन. अगर आपको सिंगिंग करने की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, अगर आपको डांसिंग का एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, सो दैट इज़ योर पैशन. पैशन को थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा. देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग रीडिंग बुक्स. सो हेयर प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक्स and let's say playing football, singing, dancing, painting, so these become your hobbies. Okay, these becomes your passion. Now the next is apprentice. Apprentice means a person who works and learned, as Michelangelo did when he was in when he came back to the Rome. Now the point is
द नेक्स्ट इज आउटशोन. आउटशोन मीन्स, पहले अप्रेंटिस समझा दो अच्छे से. अप्रेंटिस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कहीं जा कर के कुछ काम भी करता है और उसके साथ साथ कुछ सीखता भी है, लर्निंग भी करता है, तो वो कहलाएगा अप्रेंटिस. उस व्यक्ति को कहेंगे अप्रेंटिस, और इस काम को क्या कहेंगे? अप्रेंटिसशिप कहेंगे. आउटशोन. आउटशोन मीन्स वेरी इम्प्रेसिव, or rather say more impressive than someone. For example, there are 3 students in a class. So A, B, C, sorry, there are so many students in the class, but A is rank 1, B is rank 2, and C is rank 3. C is rank 3. So therefore A has outshone his performance. क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा impressive परफॉर्म किया है B और C के कंपैरिजन में. Next is keen. Keen means very interested. For example, if you are very interested to participate in annual function, so you are keen. You are keen to participate in annual function. मतलब कि जहाँ पे आप very interested word use करते हो, उसके जगह पे आप बिल्कुल ये keen word use कर सकते हो. There is no issue. Clear? Next is breathtakingly. Breathtakingly means extremely beautiful or amazing. देखो, कहीं जैसे मान लो आप कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए विद योर फैमिली और योर फ्रेंड्स, तो आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए हो, एंड ऑन दैट टूरिस्ट एट दैट टूरिस्ट प्लेस यू फाउंड ब्यूटिफुल एंड एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल रिवर. यू फाउंड अ ब्यूटिफुल एंड एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल रिवर. क्लियर? सो this thing, rather than saying it extremely beautiful or extremely amazing, you can say a single word, breathtakingly. Okay? Colossal means extremely large or huge, because Saint Balisca was actually very large and huge, and that's why Michelangelo was reluctant to do this painting. Reluctant means not interested. Reluctant means not interested. ठीक है ना? चलो, जो मैंने भी reluctant वर्ड यूज़ किया, इस reluctant का मतलब ही होता है not interested. स्पेलिंग देख लो आप लोग, RELUCTANT. क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं. सो बच्चों, ये जो है गुड ग्रामर में some noun endings are given in the box. Add as many of them to the words in the list as you can to make nouns. Remember to make the changes required in the spellings. देखो होता क्या है ना कि अभी मैंने आपको सिखाया था सफिक्स, ठीक है, कुछ पिछली क्लास में सिखाया था सफिक्स या प्रीफिक्स. तो देखो किसी भी चीज़ के आगे अगर कुछ लगाते हैं तो वो सफिक्स कहलाता है, किसी के बाद में कुछ लगाते हैं तो क्या कहलाता है? प्रीफिक्स कहलाता है. आगे लगाएंगे सफिक्स होगा, किसी वर्ड के बाद पहले लगा देंगे तो प्रीफिक्स कहलाएगा. क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स कहलाएगा. ठीक. सो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स में क्या करना है. अब कुछ नहीं करना, ये गिवन वर्ड्स हैं, इसके आगे आपको कुछ ना कुछ ऐड कर देना है, ताकि इसको एज आगे वो ऐड करना है, ताकि ये जो गिवन वर्ड्स इधर वाले हैं या ये वाले हैं, इन ये ऐड करके नाउन बन जाएं. देखो कैसे होगा. रिफ़र के आगे अगर हम ENC लगा दें, रिफ़र के आगे अगर हमने ENC लगा दिए तो रेफरेंस बन जाएगा. ठीक है. उसी तरीके से एग्जिस्ट के आगे अगर ENC लगा दें तो एग्जिस्टेंस बन जाएगा. कन्फाइन के आगे अगर कन्फाइनमेंट MENT लगा दें तो कन्फाइनमेंट बन जाएगा. और क्या दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कन्फिनिटी. कन्फिनिटी या कन्फाइनिटी दोनों कह सकते हैं, ठीक है ना. कन्फिनिटी बन जाएगा. रेगुलर का हो जाएगा अगर आप लगा दो ये वाला ITY तो रेगुलर बन जाएगा क्या? रेगुलरिटी. ठीक. और अगर आप TION लगा दो तो रेगुलेशन बन जाएगा. सो उसी तरीके से मैंने आपके सामने कर रखा है, इसको आप कॉपी कर लेना. ये सारे के सारे आपको अपनी बुक में फिल करके मेरे को भेजने हैं, ठीक है ना. और नेक्स्ट देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है. देखो ये जो सेट है ना, ये सेट ऑफ वर्ब्स है. जो सेकंड सेट है वो सेकंड सेट ऑफ एडजेक्टिव्स है, और जो थर्ड है वो थर्ड सेट ऑफ नाउन्स है. सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि इन वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और नाउन को यूज़ करके सेंटेंस बनाना है. ठीक है. जैसे ये जो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है, यहाँ पे आपको एक वर्ब और एक नाउन को जोड़ना है. जो गिवन सेट ऑफ नाउन्स है उसमें वर्ब और नाउन को यूज़ करके कुछ फिल करना है.
सेकंड वाले में एडजेक्टिव प्लस नाउन को फिल करना, और थर्ड वाले में वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन तीनों को फिल करना है। ठीक। सो अब देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन। जैसे हमने कहा देखो कि वर्ब प्लस नाउन चाहिए अपने को, तो लीड एक ऐसा वर्ड है जो कि देखो वर्ब में पड़ा हुआ है, वर्ब में लिखा हुआ है ना। सो लीड एक्चुअली अ वर्ब। लीड क्या है? एक वर्ब है। वर्ब मतलब जो काम करने वाला था, वर्किंग एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, यानी कि जिस वर्ड से ये पता चले कि ये काम करने से रिलेटेड है तो वो वर्ब कहलाएगा। जैसे अगर आपके सामने एक वर्ड लिखा है ईट, तो ईट मतलब खाना, खाना इज ए काम करना। अगर आपके सामने लिखा है स्टडी, तो स्टडी इज़ अ वर्ड जिसका मीनिंग होता है पढ़ना, तो पढ़ना इज ऑल्सो अ काम, इज ऑल्सो अ वर्क। ठीक है। सो लीड हमारा वर्ब में मिल गया। गवर्नमेंट हमारा कहाँ मिल गया? देखो गवर्नमेंट हमारा नाउन में मिल जाएगा, गवर्नमेंट नाउन में मिल गया। समझ में आ रहा है ना कि इसमें से हमें एक नाउन छांटना है, सॉरी नाउन, हाँ, इसमें से एक वर्ब छांटना है और उसके साथ एक नाउन का कॉम्बिनेशन बना करके एक सेंटेंस बना देना है। जैसे पहला सेंटेंस, अच्छा ज़रूरत के अनुसार हम लोग आर्टिकल्स लगा सकते हैं। आर्टिकल्स मतलब ए, एन और द, ये जो हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट लगा सकते हैं। ठीक है। सो लीड द गवर्नमेंट हो गया। सेकंड, असिस्ट द मैनेजर। तो असिस्ट मैंने कहाँ से ढूंढा? वर्ब में से ढूंढा। असिस्ट मैंने वर्ब में ढूंढा, द मैंने अपने आप आर्टिकल लगाया, और मैनेजर जो है मैंने यहाँ पे देख लिया, तो ये असिस्ट द मैनेजर बन गया। सिमिलरली डिफेंड द गवर्नमेंट, देखो डिफेंड मैंने यहाँ से ढूंढा, ठीक है, द मैंने अपने आप लगाया, आर्टिकल है, और गवर्नमेंट मैंने यहाँ से देख लिया नाउन में से। ठीक है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली हमको एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो बच्चों एडजेक्टिव प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन में देखो ध्यान से, अ कॉन्फिडेंट मैनेजर, ए तो आर्टिकल अपने आप आ जाएगा। कॉन्फिडेंट कहाँ है? एडजेक्टिव है, देखो एडजेक्टिव में वाले सेट में कॉन्फिडेंट लिखा हुआ है। मैनेजर क्या है? नाउन है, देखो मैनेजर नाउन वाले सेट में लिखा हुआ है। उसी तरीके से मैंने क्या किया, ए को एज एन आर्टिकल रखा, रिस्पॉन्सिबल मैंने उठा लिया एडजेक्टिव के सेट से, रिस्पॉन्सिबल देखो मैंने उठा लिया एडजेक्टिव के सेट से, और मैनेजर मैंने उठा लिया कहाँ से? नाउन के सेट से। ठीक है। जैसे ये सेंटेंस 1 था, ये सेंटेंस 2 है, ये सेंटेंस 3 है, ये सेंटेंस 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अब आगे देखते हैं। मॉडर्न एजुकेशन, मैंने मॉडर्न कहाँ से उठाया? एडजेक्टिव से उठाया, देखो मॉडर्न मैंने एडजेक्टिव से उठा लिया। एजुकेशन मैंने कहाँ से उठाया? एजुकेशन मैंने नाउन में से उठा लिया, टिक कर लिया मतलब। नेक्स्ट है, अब कह रहा है कि हमको वर्ब भी ऐड करना है, एडजेक्टिव भी करना और नाउन भी करना है। लीड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो देखो बच्चों लीड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में देखो कहाँ से आया है। लीड हमारा वर्ब से आ गया, रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव से आ गया, गवर्नमेंट हमारा नाउन से आ गया। सिमिलरली परफॉर्म द पॉसिबल कम्युनिकेशन, परफॉर्म द पॉसिबल कम्युनिकेशन मतलब कि when there is a communication gap between a child and a father, तो यही इसी के लिए सेंटेंस होता है कि परफॉर्म द पॉसिबल कम्युनिकेशन। ठीक है। सो आओ देखते हैं, परफॉर्म कहाँ मिलेगा हमारा? परफॉर्म मिलेगा वर्ब में, देखो ये मिल गया। पॉसिबल कहाँ मिलेगा? देखो पॉसिबल हमारा एडजेक्टिव में मिल गया। कम्युनिकेशन कहाँ मिलेगा? कम्युनिकेशन नाउन में मिल गया। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है, मैनेज द इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेज द इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इम्पॉर्टेंट कहाँ मिलेगा? मैनेज कहाँ मिलेगा? मैनेज मिलेगा वर्ब के सेट में, मैनेज मिलेगा वर्ब के सेट में। ठीक। इम्पॉर्टेंट कहाँ मिलेगा? एडजेक्टिव के सेट में। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ मिलेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी नाउन के सेट में। ठीक है। मैनेज द इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चों ये तो खाली एक 3 सैम्पल था, तो जिसको आपको अपने बुक में करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यू हैव टू डू दिस। बट अभी देखो कि इसमें अब कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं विच आर ऑलरेडी देयर, तो इनके हेल्प से आप अपनी फेयर कॉपी में सेंटेंस फ्रेम करो, ट्राई करो और मेरे को सेंड करो। अगर गलत होगा उसमें तो मैं तुमको इमीडिएटली रिप्लाई करूँगा, या जैसे फ्री होगा मैं रिप्लाई करूँगा। बट इससे आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि हाउ टू फ्रेम न्यू सेंटेंसेस। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना? सो अभी आपका होमवर्क क्या है बच्चों? होमवर्क ये है कि आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, और ये जो सारा मैंने आपके बुक में ऑलरेडी मतलब फिल करके यहाँ रखा है,
ये आप इसी PDF इसी वीडियो से ही अपना स्क्रीनशॉट लेके कर लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, थैंक्स अ लॉट। अच्छा हाँ, सॉरी, एक ये चीज़ और छूट रहा था, ये भी आपको करना है। देखो उसमें क्या कर रहा है ना कि मान लो एक फेमस कोई इंटरव्यू कोई एक फेमस आर्टिस्ट आ रहा है आपकी सिटी में। फेमस आर्टिस्ट मतलब जो बहुत अच्छा ड्राइंग करता है, बहुत अच्छा क्या कहते हैं, स्टैचू बनाता है, बहुत अच्छा स्कल्पचरिंग करता है। तो वो अगर आपके सिटी में आ रहा है तो आपने कुछ क्वेश्चन इकट्ठा करना है और वो आपको क्वेश्चन से इंटरव्यू में पूछना है। तो वो क्वेश्चन हमारे ऑथर ने इस बुक में पहले रखा हुआ है, बस आपको फिल करना है। जैसे वेलकम टू आवर सिटी, हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे हेयर। मान लो वेलकम टू आवर सिटी हो जाएगा, ठीक है ना, वेलकम टू आवर सिटी। फिर विच होटल आर यू स्टेइंग, विच होटल आर यू स्टेइंग हेयर या इन ओबरा। इस टाइप से आपको यूज़ कर करके सेंटेंस बनाना है और मेरे को भेजना है, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, थैंक्स अ लॉट।